Good evening to all the participants in this COSIA's webinar on decoding MSME definition, which is redefined on 1st July 2020, and also Udyam registration, which is the new terminology for the Udyog Aadhaar card, Udyog Aadhaar memorandum, which we used to take out previously. Now it has become Udyam registration. And what are its benefits? Basically, in the next 45 minutes, I am going to discuss on these issues with you. But a brief background I would like to just put before you, and I would like to start my talk with these lines कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो. बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो और हाल में चलना सीखो. चाहे पेंडेमिक हो, कोविड-19, चाहे निसर्ग का भय हो, चाहे भूकंप आ रहा हो, लेकिन हमें हर हाल में चलना होगा, हमें हर हाल में आगे बढ़ना होगा. यही संदेश ये पंक्तियां देती है, जो इस अभी के जो हमारा संकट की घड़ी चल रही है पूरे विश्व में, उसमें हमें थोड़ी प्रेरणा देती है. इसलिए हरदम मोटिवेटिंग लाइंस थोड़ी बोले तो अपने आप को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है. चेयरमैन ऑफ द कोशिया विदर्भ चैप्टर, very young at heart and dynamic personality, Shri Mayank Shukla ji, coordinator for this event, my good friend Mr. Pranav Ambaselkar, who is engineer by profession and is specializing in energy audits, energy consultancy, all esteemed industrialists of the region, entrepreneurs, chartered accountant friends, seniors, and all participants, all esteemed participants attending this webinar. My co-speaker, of course, Mr. Sanjeet Kumar, who is not yet joined but will be shortly joining. He has some other webinar which will conclude by 4:30 and then he will join with us. He is the Chief Executive Officer of the CARE Advisory, 100% subsidiary of CARE Ratings, and he is from Mumbai, and his immense knowledge and analysis on this MSME field he will share with us, which will definitely add to our knowledge. So this is our fourth webinar, as our chairman has told you in his inaugural remarks, and all of them were very well taken by the participants. Many queries were also raised and many interaction and good knowledge sharing happened in these webinars. We are fortunate to have in one webinar our MSME minister himself, Nitin Ji Gadkari, who is instrumental in changing this 14 years old act, who has committed himself that there needs to be change in the act, which is very old act, and now the dynamics have changed. Now the modalities have changed as far as the MSMEs are concerned. We are in the technological and innovative world. We need to innovate, we need to update, and we need to change the law also, the act also. And he has formed one working group also, and they are working on it, giving suggestions, taking suggestions from various industrial forums. What needs to be changed in this MSME Act, which is a very old act. And definitely very soon we will see some major changes in the MSME Act. Already definition has been changed by him, which was changed after 14 years, after a gap of 14 years, which was immediate, which was largely needed, and on priority basis he made it he made it more accommodative, more broad, so that more units can take the benefit of MSME registration. So this is the thing. As you all know, MSME is a very important sector of our Indian economy, which is contributing almost 30% of the GDP.
growth, and exports are almost 45% of the total exports of India, which are contributed by MSME. More than 12 crore employment is given by the MSME units, and it is a very important and contributing sector of the Indian economy. And so government is also very much committed and very much prioritize this sector, MSME, to give various incentives in this difficult phase. So friends, let me start today's topic, which is the decoding of the MSME definition, which is redefined, and what is Udyam registration and what are its benefits. Just a moment, I will just share my screen with all of you. So micro, small and medium enterprises, as you all know, MSME and its underlying benefits. The Small and Medium Enterprises Development Bill 2005, which was enacted in June 2006 and which came into force on 2nd of October 2006. And the all MSMEs are governed by this MSMED Act, which is Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. इसमें अभी भी कोई बदलाव सिर्फ डिफिनेशन के अलावा जो एक्ट 2006 में बना था वही अभी तक है. बहुत छोटा एक्ट है, 13-14 पेजेस की एक उसका 13-14 पन्नों का एक्ट है, 14 पेजेस में पूरा एमएसएमई एक्ट है. नाउ इट नीड्स टू बी मॉडिफाइड एंड एनलार्ज इट्स स्कोप आल्सो. तो इसके लिए अभी वर्किंग शुरू है. वेरी सून वी विल हैव सम चेंजेस इन दिस एमएसएमई एक्ट. Salient feature of the act, as you all know, it is basically classification of enterprises. Whether your unit is micro, small, medium, will be decided by virtue of the definition given in this act. So classification of enterprises is one of the important aspect, important section of this act, and there are various measures for development, promotion and enhancement of MSMEs contained in this act. There are schemes, there are sections to control delayed payments to MSME. MSME enjoy priority in tenders, and in also they have some relaxations in filling up the tenders. Some concessions are given to the MSME as compared to the large units or the multinationals or the large corporates. So this is the means. And what does an enterprise mean? Industrial undertaking or a business concern or an establishment engaged in manufacture or production of goods or engaged in providing or rendering of any service or services. ये दो ही प्रकार की जो गतिविधियां है, या तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और engaged in providing or rendering of any service or multiple services. या तो सर्विस प्रोवाइडर होगा या मैन्युफैक्चरर होगा, प्रोड्यूसर होगा, then only it will be governed by this act, MSMED Act. काफी लोगों को एक कंफ्यूजन है कि वेदर अब डेफिनेशन चेंज हो गई है तो ट्रेडिंग यूनिट whether it will be governed by this MSMED Act, whether it will come under MSME, purely trading unit. The answer is simple no. It cannot come under this act because trading is not contained in this both this activity, manufacturing and service. अगर ट्रेडिंग है उसके साथ सर्विस भी दे रहे हैं, सपोज एसी का उसका ट्रेडिंग है, एयर कंडीशनिंग, और उसके साथ वो एयर कंडीशनिंग फिटिंग इंस्टॉलेशन की सर्विसेज भी दे रहे हैं, और दैट सर्विस पार्ट ही में रजिस्टर एज एमएसएमई बट नॉट फॉर द ट्रेडिंग यूनिट. उसे दो हिस्से करना पड़ेगा उसके, डिवीजन ए, डिवीजन बी. डिवीजन ए विल बी ट्रेडिंग यूनिट, डिवीजन बी विल बी सर्विस यूनिट. सर्विस यूनिट कैन बी रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई. और मैन्युफैक्चरिंग है तो फिर कोई उसमें कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है. नेचुरली अगर वो एमएसएमई की डेफिनेशन में आता है जो अभी चेंज हुई है, देन it will be classified under MSME. So basically you have to keep in mind
इवन कॉन्ट्रैक्टर्स, काफी कॉन्ट्रैक्टर्स के भी फोन आते हैं। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दे रहे हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स है, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन की सर्विसेज दे रहे हैं। वेदर वी विल कम अंडर MSME Act? Yes, they can register under the MSME Act if they are fitting into the eligibility criteria of the MSME definition. So this seems to be clear. Any doubts we can discuss later on. अब क्या चेंज आया है? एग्जिस्टिंग यानी ये 30 जून तक थी और रिवाइज्ड यानी एक साथ से अभी चालू होगी। एग्जिस्टिंग MSME जो था मींस अप टू 30th जून 2020, उस वक्त ये था कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस बोथ वर डिफरेंशिएटेड। फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस देयर वर डिफरेंट लिमिट्स, फॉर सर्विस एंटरप्राइजेस देयर वर डिफरेंट लिमिट्स। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में माइक्रो अगर रहता है और इन्वेस्टमेंट इन व्हाट, प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट 25 लाख से कम है तो माइक्रो में आता था, इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम है तो स्मॉल में आता था, और इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से अगर कम है तो मीडियम में आता था इफ इट इज मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। बट इफ इट इज अ सर्विस एंटरप्राइजेस देन इन्वेस्टमेंट 10 लाख था और इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ था और इन्वेस्टमेंट लेस देन 5 करोड़ था तो मीडियम में आता। नाउ व्हाट हैज हैपेंड फ्रॉम 1st July 2020, there is no differentiation between manufacturing and service enterprises. Now discrimination has been parted with. Now both are on the equal footing. चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, उसको एक ही क्राइटेरिया लगेगा, इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर। बोथ द क्राइटेरिया, पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया था, नाउ इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर, बोथ द क्राइटेरियाज should be fulfilled to see, to classify whether the unit is micro, small or medium. So according to the changed definition which is effective from, which has become effective from 1st July 2020, which is incidentally our Chartered Accountants Day also, CA Day also, GST Day also, and now the new definition day also, 1st July 2020. If investment is less than 1 crore, investment in what? Investment in plant, machinery or equipment, सबको combined देख के लिया जाएगा। And turnover is less than 5 crore, दोनों भी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट मान लो 1 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़ 10 लाख है, then it will be automatically transferred in the next category, that is the small category, because turnover is exceeding 5 crores. So if both the criteria, investment criteria as well as the turnover criteria are fulfilled, then it will be classified accordingly. So for micro it is investment is less than 1 crore and turnover should be less than 5 crore. So for small, investment less than 10 crore and turnover less than 50 crores, and for medium, investment less than 50 crore and turnover less than 250 crores. So very huge change. अब देखिए पहले इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैक्सिमम 10 करोड़ था, सीधा उसे उठा के मीडियम से इन्वेस्टमेंट अभी आ गया है 50 करोड़, और टर्नओवर भी क्राइटेरिया डिफाइन है उसमें 250 करोड़। ये इन्वेस्टमेंट अगर 50 करोड़ के अंदर है और टर्नओवर 250 करोड़ के अंदर है, देन इट विल बी क्लासिफाइड एज मीडियम according to this slab which is mentioned in the table which is shown in your screen. So the turnover में एक चीज और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, turnover with respect to exports will not be counted in the limits of turnover for any category of MSME units, whether micro, small or medium. और एक आपको राहत दे दी, कई यूनिट्स का ऐसा होता है कि 300 करोड़ का टर्नओवर है, उसमें से 150 करोड़ एक्सपोर्ट टर्नओवर, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर को इसमें इस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर, ओनली डोमेस्टिक टर्नओवर विल बी काउंटेड एंड टर्नओवर इन्वेस्टमेंट लिमिट, बोथ लिमिट्स आर एप्लीकेबल टू अ सिंगल पैन ऑफ बिजनेस। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा
कि अगर आपके फैक्ट्री के 4 यूनिट्स है या आपकी सर्विस इंडस्ट्री की 4 जगह पे आपको फैसिलिटीज है, तो चारों का अगर सिंगल पैन है, एक ही कंपनी के अंदर वो चारों डिवीजन है, तो सबका कंसोलिडेटेड फिगर लेके इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया और टर्नओवर क्राइटेरिया हमें देखना होगा, एंड देन वी विल हैव टू क्लासिफाई वेदर इट इज माइक्रो, स्मॉल और मीडियम. So important thing is that from turnover, export turnover has to be excluded. Without export turnover, only domestic turnover has to be counted. And single pan basis, 3 यूनिट अगर डिफरेंट लोकेशन पे लेकिन कंपनी एक ही है, तो तीनों का मिला के ये क्राइटेरिया देखा जाए. बट स्टिल देयर इज the scope has been broadened to such an extent कि the statistics are showing that not the authentic but the rough statistics. We will get the exact statistics in some days because now the registration have started. तो अब ऐसा लग रहा है कि जितने भी यूनिट्स है, लार्ज, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा या बड़े कॉर्पोरेट्स जो है, मल्टीनेशनल्स है, ये जितनी भी कंपनीज है, इसमें अब ऐसा लग रहा है कि 95% जो कंपनीज रहेगी, जो फर्म्स रहेगी, जो एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे, दैट विल नाउ कम अंडर एमएसएमई. दे विल नाउ कम अंडर एमएसएमई. ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ दिस डेफिनेशन 94 to 95% का एक अंदाजा लगा जा रहा है कि एमएसएमई में इतने लोग कवर हो. तो एक बहुत ही होराइजन को वाइडर कर दिया है टू, because there are immense benefits in this MSME, so one can get that benefit. So majority of the units will be getting the benefits of the MSME. तो broaden करने का एक मकसद ये था कि अब 14 साल पहले जो स्थिति थी और आज 14 साल के बाद इन्फ्लेशन रेट देखिए या जो प्राइसिंग है प्रोडक्ट्स की वो भी काफी बढ़ चुकी है. इन्वेस्टमेंट जो है, मशीन जो पहले लेथ मशीन 14 साल पहले 20,000 रुपए में आती थी, वो आज 2 लाख रुपए में आ रही है. तो वैल्यू हैज आल्सो इंक्रीज. तो इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड, इट वाज वेरी मच नेसेसिटेड दैट दिस डेफिनेशन नीडेड टू बी चेंज ब्रॉडली. तो जितना दे सकते थे, पहले आपने देखा होगा कि जब पहली बार हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया तब मीडियम के उन्होंने 20 करोड़ और 100 करोड़ किया. लेकिन गडकरी साहब का जो एक विजन था कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट देना चाहते थे, वो दिल्ली गए 1 जून को, जब नागपुर में थे काफी दिनों से बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, एंड इन द कैबिनेट मीटिंग ही प्लीडेड फोर्सफुली दैट दिस इन्वेस्टमेंट शुड बी not 20 crore but should be 50 crore at least, and turnover should be 250 crores, and he was successful. And now this definition is before you. Notification has come on 26 June of this definition, the detailed notification, and now we are analyzing and interpreting the things. Now Udyam registration. Udyam registration is basically the new terminology or the new nomenclature for the term उद्योग आधार मेमोरेंडम. UAM जो हम निकालते थे, कई लोगों ने निकाला है और उससे हमको एक आंकड़ा मिला था कि इतने एमएसएमई यूनिट्स है इंडिया में, बिकॉज वो एमएसएमई यूनिट्स को ही निकालना पड़ता था. लार्ज यूनिट्स के लिए जो था वो IEM होता था, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दिल्ली यहाँ से इश्यू होता. और ये एमएसएमई मिनिस्ट्री से उद्योग आधार मेमोरेंडम इश्यू होता. Now they have changed it to Udyam registration, which will be applicable from 1 July 2020. All existing enterprises registered under EM Part 2 or Udyog Aadhar Memorandum shall register again on the Udyam registration portal. यानी ऑलरेडी जिनके रजिस्ट्रेशन है उन्हें भी उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, बिकॉज एमएसएमई जो क्लासिफिकेशन है उस उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लिख के आएगा कि वेदर यू आर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम on the basis of your declaration, on the basis of the information that you provide in the
फॉर्म वो कैसे होता है वो भी आगे मैंने शेयर किया है, हाउ इट इज डन and on which link it is, on which link you have to go and click and all these things shown in my presentation. Existing enterprises under EM part 2 or उद्योग आधार prior to 30th June 2020 shall continue to be valid only for a period of 31st March 21. मीन्स 31st March 21 तक का टाइम आपको दिया गया है to get your new उद्यम registration in lieu of उद्योग आधार मेमोरेंडम। उसकी जगह पे आपको लेना है, पर आपके पास 9 महीने का समय गवर्नमेंट ने दिया है। उस 9 महीने के भीतर, 9 महीने के अंदर आपको वो रजिस्ट्रेशन कराना है। All enterprises registered till 30th June 2020 shall be reclassified in accordance with the new notification specifying revised limit of recognition of an enterprises as a micro, small or medium scale unit enterprises. जो मैंने कहा कि जितने भी 30th जून तक रजिस्टर्ड थे उद्योग आधार के अंदर में, they have to be reclassified according to the new definition, और वो किस प्रकार से उसमें आएंगे, माइक्रो में आएंगे या स्मॉल में आएंगे, मीडियम में, that will be decided on the form you fill up for the udyam. In case of businesses linked to a single PAN with a different GST number, collective investment in plant and machinery as well as collective turnover of an enterprises in various businesses linked to a single PAN shall be considered in order to, जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि 4 अगर डिवीजन है, 3 डिवीजन है, 2 डिवीजन है, तो सबका कंसोलिडेट करेंगे, सबका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट को भी कंसोलिडेट करेंगे, ऐड करेंगे, और टर्नओवर को भी कलेक्टिव करेंगे, मींस उसको सभी को ऐड करेंगे साथ में, तीनों यूनिट के, एंड देन अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया यू विल हैव टू डिसाइड वेदर इट इज माइक्रो, स्मॉल और बिग। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी shall be linked to income tax return of latest previous year filed under income tax act. ये सबसे एक अहम मुद्दा है जिसके अंदर में कई बार चर्चा भी हो रही है, कई बार इंटरप्रिटेशन भी निकाला जा रहा है। ये इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी सर हम कहाँ से काउंट करेंगे, कौन सी काउंट करेंगे, कौन से साल की काउंट करेंगे, विच ईयर इन्वेस्टमेंट आई हैव टू टेक, वेदर 31st March 2020 और 31st March 19। यहाँ क्या लिखा है देखिए, डेफिनेशन के नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी shall be linked to ITR of latest previous year filed under income tax act। अब आज की डेट में लेटेस्ट प्रीवियस ईयर रिटर्न कौन सा है, मार्च 2019। मार्च 20 का अभी रिटर्न लोगों ने फाइल नहीं किया है क्योंकि अभी उसकी ड्यू डेट भी आने की है, और अभी हम लोग सब कोविड-19 में उलझे हुए हैं, तो बुक्स भी कई लोगों पे रेडी नहीं है और सभी चीजें पेंडिंग है। तो 31st March 19 आज की डेट में 99% ऑफ द केसेस में वही रहेगा क्योंकि आपने फाइल किया ITR 31st March 2019 का। उसमें आपने जो इन्वेस्टमेंट दिखाया होगा आपका प्लांट एंड मशीनरी का, दैट विल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ योर यूनिट। बट उसमें एक चीज ये होती है कि जो हम रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स में, उसमें प्लांट एंड मशीनरी जो रहती है, इट इज शोन ऑन रिटन डाउन वैल्यू, नॉट ऑन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बेसिस। तो यहाँ पे कंफ्यूजन का मुद्दा आ गया कि कौन सा लेना है, WDV लेना है या ग्रॉस लेना है, जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की है वो लेना है कि डेप्रिसिएटेड वैल्यू लेना है 31st March 19। दैट इज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन, that is the point of confusion, that is the point of discussion amongst the consultants, amongst the stakeholders, and what, to the best of my interpretation, to the best of my knowledge gained in the practice of 23 years, what I feel presently हमको WDV पे लेना पड़ेगा, but this was not never the intention of the MSME ministry, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आप डेप्रिसिएटेड वैल्यू लियो। जो 10 साल पहले मशीन लेंगे उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू तो बहुत कम हो जाएगी या लाइफ ही खत्म हो जाएगी, और ऊपर से ब्लॉक ऑफ एसेट रहता है, मशीन के ब्लॉक के साथ अगर व्हीकल का ब्लॉक मिक्स है तो वी हैव टू सेग्रीगेट इट। तो इनकम टैक्स से वो कैसे निकाल पाएंगे, बिकॉज इनकम टैक्स के साथ वो लिंक करने वाले हैं
जीएसटी के साथ वो लिंक करने वाले हैं टू वेरीफाई योर पर्टिकुलर्स, टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन। अब रिटर्न के अंदर ये होता है, जितने यहाँ पे मेरे सीए फ्रेंड्स होंगे या जो जो जानते होंगे कि रिटर्न के अंदर में किस प्रकार से हम लोग उसको फिल करते हैं। जब हम लोग आईटीआर ऑनलाइन अपलोड करते हैं तो वहां पे ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉलम होता है जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एक जैसा हो। तो व्हीकल का भी 15% है, प्लांट एंड मशीनरी का 15% है, इलेक्ट्रिकल्स का भी 15% है। वो सब मर्ज होके ब्लॉक में वहां पे अमाउंट जाती है। Of course, we are filing the balance sheet along with the fixed asset schedule. उसमें हम लोग asset wise classification दिखाते हैं। But ITR रिटर्न अगर वो लोग उसको ITR रिटर्न से जानकारी लेके तो मैच होगा नहीं। तो यहाँ पे एक डिस्प्यूट आने की संभावना है जिसके बारे में we have discussed with honorable MSME minister and MSME secretary कि सर यहाँ पे क्लैरिटी लाने की जरूरत है। एक्चुअल आप लिख दीजिए कि कौन से साल का प्रीवियस ईयर लेना है। आपने लेटेस्ट प्रीवियस ईयर बोला है यहाँ पे। तो आज हमको अगर रजिस्ट्रेशन निकालना है, आज 10 जुलाई को अगर हमें रजिस्ट्रेशन निकालना है और हमारा 31 मार्च 2020 का रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, तो कैन वी टेक 31 मार्च 2019 द वैल्यू गिवन इन द ITR ऑफ 31 मार्च 19। ये चीज एक बाकी है। उसके बाद ये कहा गया ये किसका हो गया, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस वाले हैं, ओल्ड बिजनेस यानी जिसका बिजनेस रनिंग है। अगर नया एंटरप्राइज चालू होता है तो वहां पे क्या लिखा है, इन द केस ऑफ न्यू एंटरप्राइज सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ कैटेगरी ऑफ एंटरप्राइजेस till this time first income return gets fly shall be based for its उद्यम रजिस्ट्रेशन। एंड नए यूनिट के लिए बोल रहे हैं कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न आपका फाइल नहीं हुआ होगा उस यूनिट का, तो उस बेस पे हम उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको देंगे। लेकिन उसमें क्या लिखा है नीचे देखिए 4th नंबर का पॉइंट, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन शॉल बी इनवॉइस वैल्यू लेस जीएसटी अप्लाई। इनवॉइस वैल्यू मींस ओरिजिनल वैल्यू आ गई, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है। यानी नए वालों को आप ग्रॉस के हिसाब से लेने बोल रहे हैं, जीएसटी का वैल्यू माइनस करके आपको देखना है। लेकिन वहां पुराने वालों में आपने लिखा है कि इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से लेंगे। यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है जिसके बारे में बहुत जल्द क्लैरिटी आ जाएगी, ऐसी उम्मीद है। टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल डिटरमिनिंग कैटेगरी ऑफ द यूनिट। The amount of export turnover shall be cross-checked and verified with ITR and GST return because they are now linking your PAN और आधार, इनकम टैक्स और जीएसटी के साथ पूरा लिंक हो जाएगा। तो अब आपको बहुत ही केयरफुली और ध्यान से बिल्कुल आपका जो पर्टिकुलर्स है, जो ऑथेंटिक पर्टिकुलर्स है, वही भरना पड़ेगा while taking out उद्यम रजिस्ट्रेशन। Enterprise can file its all manufacturing or service activities in a single उद्यम registration। मीन्स आपकी अगर मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, मीन्स आप प्रोडक्ट ए बनाते, प्रोडक्ट बी बनाते हैं, या आप 3 प्रकार के अलग अलग सर्विसेज देते हैं, तो सिंगल उद्यम रजिस्ट्रेशन में कवर हो जाएगी। वहां पे मल्टीपल ऑप्शन दिए है कि हम लोग प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, हम लोग पॉलीमर्स भी बनाते हैं, उसके और कोई तीसरी एक्टिविटी हो वो भी करते हैं। तीनों एक ही, इसमें एंटरप्राइज एक ही है, पैन नंबर एक ही है, पर 3 अलग अलग डिविजन है, 3 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है। दैट कैन बी कवर्ड इन अ सिंगल उद्यम रजिस्ट्रेशन। नो नीड टू टेक आउट उद्यम रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअली फॉर एवरी एक्टिविटी। एंड आधार नंबर ऑफ प्रोप्राइटर कर्ता ऑफ एचयूएफ ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी इज मैंडेटरी फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। इस आधार नंबर तो वैसे भी इंडिया में हर जगह मैंडेटरी है। तो जो भी है, प्रोप्राइटर है, करता है, या ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी या पार्टनर है, एलएलपी का पार्टनर है, या पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स है, या डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, उनका आधार नंबर होना जरूरी है फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। अब इसमें यह कहा गया है कि प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या आइटम्स आएंगे। आइटम्स कवर्ड मशीनरी एंड प्लांट, ये तो आएगी। इनकम टैक्स रूल के हिसाब से, इनकम टैक्स रूल्स 1962 में जो अपेंडिक्स 1 में जो आइटम्स लिखी गई है प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में, उस हिसाब से यहाँ पे लेना है, ऐसा इन्होंने कह दिया है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन देयर, मशीनरी एंड प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी में पूरी मशीनरी एंड प्लांट आएंगी।
ये तो क्लियर है। मोल्ड्स आएंगे, इससे मोल्ड्स अलग अलग बनते हैं, कई इंडस्ट्री में मोल्ड्स लगते हैं, वो भी इट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। देन स्पेसिफाइड एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, वाटर पोल्यूशन इज स्पेसिफाइड। वो स्पेसिफाइड कैसे वो होगा वो हमें देखना पड़ेगा। स्पेसिफाइड एनर्जी सेविंग devices, computers including computer software. If it is given for the manufacturing process, computer software is used for manufacturing process. ये हमको प्रूव करना है। कंप्यूटर ऑफिस का कंप्यूटर नहीं आएगा प्लांट एंड मशीनरी के अंदर। जिस कंप्यूटर से आप अकाउंट्स टैली बनाते हो और डाटा बनाते हो, आपके अकाउंट्स लिखते हो, जिस कंप्यूटर से आप मेल करते हो, वो जो ऑफिस में कंप्यूटर्स लगे हैं वो नहीं, यहाँ पे जो मीनिंग है वो ये नहीं कहना चाहता। अगर आपके टेक्सटाइल यूनिट है तो वहाँ जो प्रिंट होती है, जो डिजाइन बनती है कपड़े के ऊपर, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसमें लगता है और वो कंप्यूटर से वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसमें वो डिजाइन फिट होती है एंड देन इट इज प्रिंटेड। That if it is included in the manufacturing process, that computers are included in this. And items not covered क्या है? Electrical fittings, electrical wiring, switches, sockets, जो भी है, furniture and fittings also, wells and tube wells, water treatment system, intangible assets, know-how, patents, copyright, trademark, licenses, जो भी है, ships and likes mainly used for dredging purposes, फिशिंग वेसल्स एंड वेसल्स ऑपरेटिंग इन इनलैंड वाटर्स। ये जो यहाँ पे आइटम्स लिखी है, दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एमएसएमई डेफिनेशन। आइटम्स नॉट कवर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगता है, R&D डिवाइसेस लगते हैं, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस लगते हैं। कॉस्ट ऑफ सच अदर आइटम्स हैज मे बी स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन। दिस आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन प्लांट एंड मशीनरी। Now we will see what are the steps for the उद्यम रजिस्ट्रेशन। आपको प्रोसीजर जो है यहाँ पे दिखाया गया है। उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in इस साइट पे क्लिक करना है। वहां जाने के बाद आपको ये आएगा, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ब्लू कलर का स्लाइड। यू विल सी दैट इज द होम पेज of this उद्यम रजिस्ट्रेशन। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और चैंपियंस, एक चैंपियंस पोर्टल उन्होंने बनाया है, एमएसएमई मिनिस्ट्री ने चैंपियंस पोर्टल बनाया। उस चैंपियंस पोर्टल पे भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पे जाके भी आप आपका ग्रीवेंसेस नोट करा सकते हैं। अब वहां पे देखिए नीचे दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन, जहाँ लिखा है उसके नीचे for new entrepreneurs who are not registered you yet as MSME, और सेकंड ब्लॉक में लिखा है for those already having registration as EM2 और UAM। तो ये यहाँ पे क्लिक करना है, जिस कैटेगरी में जैसे बैठेंगे यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आप आगे जाएंगे तो सबसे पहले आधार नंबर, आपका यूनिट का नाम और वहां के डायरेक्टर का या पार्टनर का या प्रोपराइटर का आधार नंबर आपको डालना, और आधार नंबर के ऊपर में आपको ओटीपी आएगा, दैट यू हैव टू जनरेट ओटीपी एंड वैलिडेट होने के बाद फिर आप और आगे बढ़ेंगे। थर्ड स्टेप जो है पैन वेरिफिकेशन का है, आपको पैन वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, मींस पैन नंबर डालना पड़ेगा आपके यूनिट का एंड इट विल बी वेरीफाइड। देखिए पूरा लिंक हो चुका है, ऑलरेडी सभी चीजें लिंक हो चुकी है इनकम टैक्स से और जीएसटी से। So be very careful while filling the information, otherwise mismatch होगा, you will get a notice or you will get some letter from that you could not be registered because of inaccurate details or inaccurate particulars. So you have to keep this in mind, and then उसके बाद ये फॉर्म आता है, ये फॉर्म आपको पूरा भरना पड़ेगा, यानी ये दोनों वेरिफिकेशन होने के बाद ये फॉर्म आएगा। उसके बाद ये फॉर्म भर के, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, जैसा यूएम में था उसी प्रकार का है करीब करीब। ये फॉर्म भरने के बाद
आपका काम पूरा होगा। आज की स्थिति में ये हो रहा है कि एग्जिस्टिंग यूएएम जो है, उद्योग आधार मेमोरेंडम होल्डर, उनको यहाँ ये फॉर्म भरने के बाद वो रोक दे रहा है, नंबर नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है कि वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। मीन्स अब वो पूरा एक बार वेरिफिकेशन या जो भी उनका प्रोसेस होगा वो करने के बाद आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन मिलेगा। पुराने जो है, एग्जिस्टिंग जो है, नए वालों को दे रहा है। पुराने वाले यहाँ पे ये फॉर्म भरने के बाद जब अपलोड कर देते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, उसे ये मैसेज आ रहा है। सो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ things will get streamlined and we will be able to take the उद्यम रजिस्ट्रेशन immediately। जैसे उद्योग आधार कार्ड बनता था, इमीडिएट मिलता था, मीन्स आधे घंटे में आप यू कैन गेट द उद्योग आधार मेमोरेंडम। उसी प्रकार अभी ये सिस्टम नहीं है इसमें, क्योंकि लिंक किया हुआ है पूरा डाटा पैन और इससे जीएसटी से आधार से, तो इट विल टेक सम टाइम, यू विल गेट द रजिस्ट्रेशन। पर आपको 31 मार्च 21 तक है। एग्जिस्टिंग जो हमारे उद्योग आधार मेमोरेंडम होल्डर है, दे आर ऑलरेडी हैविंग यूएएम, तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट यूएएम उनका काम अभी 31 मार्च 21 तक तो चल जाएगा। आप अप्लाई करके रख दीजिए, आपको ये उद्यम रजिस्ट्रेशन जल्दी मिल जाएगा। सिर्फ कैटेगरी चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इफ योर कैटेगरी इज बीइंग चेंज ड्यू टू दिस रिडिफिनेशन ऑफ द एमएसएमई तो उसमें थोड़ा फर्क पड़ सकता है, अदरवाइज उसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि 9 महीने में बचे है हमारे पास, तो उसके पहले हमें ये मिल जाएगा। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एमएसएमई? ये कई बार हमें पूछा गया कि साहब एमएसएमई होने से मुझे क्या फायदा मिलता है, क्या मिल जाएगा? अभी जितना एमएसएमई के बारे में जितने लोगों ने अभी तक नहीं सुना था, आज इतना उसका एक हॉट टॉपिक हो चुका है, हवा हो चुका है कि जो वो एमएसएमई की बात कर रहा है, किराना शॉप वाला आके भी पूछता है कि वेदर आई एम एमएसएमई सर, वेदर आई कैन गेट द लोन। गैरेज का मैकेनिक भी आके पूछता है, मेरा एक छोटा सा गैरेज है, वेदर आई एम एमएसएमई। कुछ काफी सरकार योजनाएं दे रही है, काफी इंसेंटिव दे रही है, रेवड़ी बढ़ रही है एमएसएमई के लिए, तो हमें क्या मिलेगा? साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब स्कीम्स है। You have to get the benefit by fitting under the MSME and availing the benefits which are being given, indirect benefits। कोई आके आपको हाथ में 1 लाख रुपए कैश नहीं दे देने वाला है बिकॉज यू आर एमएसएमई, और कोविड-19 आ गया और सबको तकलीफ है और एमएसएमई को सबको पैसा दे। दिस इज नॉट द थिंग। आपको कोलैटरल फ्री क्रेडिट देंगे, आपको जो क्रेडिट देंगे वो कम इंटरेस्ट पे देंगे, आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिले इन पेमेंट देंगे। ये सब चीजें हो सकती है उसके अंदर में, लेकिन ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं है कि एमएसएमई सर्टिफिकेट निकाल दिया तो आपको कोई एकदम आके कैश सब्सिडी देंगे। You have to fit in, but there are multiple benefits of registration as MSME। कोलैटरल फ्री क्रेडिट है, 15 तो मैंने निकाले हैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने के लिए। उसके अलावा भी कई होंगे जो यहाँ पे ध्यान में नहीं आए होंगे, यहाँ पे टाइम नहीं है तो नहीं शेयर कर पाएंगे। यू कैन शेयर विथ मी, आई विल अकोमोडेट इन माय प्रेजेंटेशन नेक्स्ट टाइम, बाकी लोगों को फायदा हो जाएगा। लेकिन जो 15 मेजर बेनिफिट्स है वो यहाँ पे मैंने शेयर किए हुए। कोलैटरल फ्री क्रेडिट, आपने सीजीटी एमएससी का नाम सुना होगा, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। MSME can avail maximum collateral free credit up to 2 crores from eligible institutions। 2 करोड़ रुपए तक आपको कोलेट्रल देने की आवश्यकता नहीं है, इतनी फैंटास्टिक स्कीम है। लेकिन बैंक इसमें बहुत ज्यादा, सॉरी टू से, बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं रहती है या बहुत ज्यादा विलिंगनेस नहीं रहता बैंक का स्कीम में फंडिंग करना। बट स्टिल इफ योर यूनिट इज गुड एंड इफ यू आर एबल टू कन्विंस द बैंकर्स, देन you will be able to get this by virtue of you being your unit being MSME, collateral free credit। फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है, कोई स्टार्टअप बिजनेस डालना चाहता है, कोलेट्रल नहीं है तो क्या वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, काम नहीं कर पाएगा? पैसे नहीं मिलेंगे तो आगे कैसा बढ़ेगा? तो पैसे क्यों नहीं मिलेंगे?
वो बैंकर ये कहता है कि भैया कोई प्रॉपर्टी दीजिए तभी आपका काम हो सकता है, आपका प्रपोजल तो अच्छा है बट विदाउट सिक्योरिटी वी आर नॉट डूइंग एनी प्रपोजल. वी आस्क हिम व्हाट इज दिस स्कीम मेड फॉर. CGTMSE गवर्नमेंट ने क्यों बनाया इसको. इसमें आपको 1.25% फीस देना पड़ता है इस बोरोवर को टू दिस क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट. जो 1.25% आपका इंश्योरेंस का जो स्कीम है वो आप उसको देते हो. एंड दिस गारंटी ट्रस्ट takes guarantee of your loan, gives guarantee of your loan to the banker. तो बैंकर को क्या तकलीफ है, बट स्टिल यू इंसिस्ट. अगर आपका प्रपोजल अच्छा है, बाकी सब है, सिर्फ आप कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है आपके पास, उसकी वजह से आपका काम नहीं हो पा रहा है, देन यू कैन अप्रोच अंडर दिस स्कीम बिकॉज यू आर एन MSME. इवन मुद्रा वालों के लिए भी है, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना भी है छोटे पैमाने पे, लेकिन जो हमको 2 करोड़ रुपए से कंसिडरेबल फिगर, 2 करोड़ रुपया, अगर 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ खुद लगाना, 1 करोड़ मैं लगाऊंगा, प्रमोटर्स लगाएंगे, 2 करोड़ बैंक से लेना है, ये स्कीम बैठ जाती. देन सेकंड इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिले इन पेमेंट. द बायर हैज टू मेक द पेमेंट. अगर आप माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है, इसमें एक थोड़ा लेक्यूना है, इसमें 45 डेज का जो क्लॉज है उसमें MSE लिख दिया है MSME की जगह. वो अब 14 साल पहले लिखा गया था, वो जानबूझ के लिखा है या गलती से वो लिखा हुआ है, ये नहीं समझ में आ रहा. इसके बारे में भी ध्यान आकर्षित कर दिया गया है ऑनरेबल अथॉरिटीज का कि आप मीडियम को क्यों वंचित रख रहे इस बेनिफिट से. वहां पे आपने माइक्रो और स्मॉल लिखा है कि अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ने कोई माल सप्लाई किया या कोई सर्विसेज प्रोवाइड की और सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट किया और 15 दिन के अंदर अगर एक्सेप्ट नहीं भी किया और कोई कंप्लेंट नहीं, तो डीम्ड एक्सेप्टेंस माना जाता है आफ्टर प्रोवाइडिंग द गुड्स और सर्विसेज. आफ्टर 15 डेज इट इज डीम्ड एक्सेप्टेंस. डीम्ड एक्सेप्टेंस या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के 45 दिन के अंदर अगर आपको पेमेंट नहीं मिला है, unless otherwise there is a separate contract of your contract or agreement with the buyer, तो आप 45 दिन के अंदर आपको पैसा नहीं मिला तो यू कैन फाइल अपील against that buyer to the facilitation council which is headed by joint director of industries in every district, और they will pass an order. अगर जानबूझ के कोई आपका पैसा रोक रहा है और आप MSME हैं तो आपको 45 दिन के अंदर में पेमेंट आपका हक बनता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट, MSME Act, and you have to get it. So this is the thing, this is the another biggest advantage of being the MSME. सिर्फ इसमें मीडियम नहीं लिखा है, MSE लिख दिया है, वहां माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस कर दिया है, M को गायब कर दिया है वहां से. क्यों गायब किया वो नहीं मालूम, लेकिन हमने साहब को बता दिया है, साहब के ध्यान में ला चुके हैं कि मीडियम को भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए. वेरी सून we may see the change or the notification for this change. Then there is a trade receivable discounting system, trades. ये भी बहुत ही एक एकदम नया टाइप का कंसेप्ट है. स्टॉक एक्सचेंज जैसा रहता है वैसा ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है. What it does, it aims at facilitating the financing, discounting of trade receivables of micro, small and medium enterprise to multiple finances. Means अगर आपका कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट कस्टमर है या PSU कस्टमर है या कोई बिग कॉर्पोरेट है जिसको आपने माल दिया है और जिससे आपको पेमेंट आने में आपका एग्रीमेंट है कि 60 दिन में पेमेंट वो कंपनी आपको देगी, तो 60 दिन आपको रुकना पड़ेगा. मान लो आपने 50 लाख रुपए का कोई सप्लाई किया टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU, वहां से पेमेंट आने में हरदम विलंब भी होता है फॉर वन रीजन और द अदर. तो हमें ऐसी स्थिति में अगर इफ योर यूनिट इज रजिस्टर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, यू कैन इमीडिएटली गेट दिस योर रिसीवेबल डिस्काउंटेड. आपका जो डेटर्स है वो आप डिस्काउंट कर सकते हैं बाय, उसमें कुछ कमीशन या सर्विस चार्जेस लगेंगे 2 या 3% या whatever may be the rate on that day, and you will get the balance payment immediately in your account. उसमें एक एग्रीमेंट बन जाता है
ट्राई पार्टी, तो वो जब पैसा आपको गवर्नमेंट से आता है तो एस्क्रो अकाउंट में वो चले जाएगा उनके पास। तो इस प्रकार की ये बहुत फैंटास्टिक सुविधा है, कई लोगों को मालूम नहीं होता कि किस प्रकार से एमएसएमई को फायदा दिलाना है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, n number of things by way of which we can get the benefit for MSME units. तो ये आज आपको तुरंत पैसा अगर मिलता है, जैसे आपका बिल बना, इनवॉइस तैयार हो गया, आपका माल एक्सेप्ट हो गया, आप आपका इनवॉइस को यहाँ पे डाल दीजिए ट्रेड्स के ऊपर, मल्टीपल फाइनेंसर है, बोली लगाएंगे, आपका ऑप्शन होगा, जो ज्यादा दाम देगा आपको उसको आप बेच देना आपका डेटर, वो रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट से पैसा तो आना है अगर एक्सेप्ट किया है तो। या श्योरिटी होती है पेमेंट आने की, वही डेटर्स या वही रिसीवेबल्स को यहाँ पे डिस्काउंट किया, कॉम्पिटिटिव रेट्स है, ऑक्शन मैकेनिज्म है यहाँ पे। सो बैंक में भी एक प्रोडक्ट हुआ करता था फैक्टरिंग जिसे कहते थे, या रिवर्स फैक्टरिंग, उसी तर्ज पे ये बनाया गया है कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट innovative benefits for MSMEs. Interest equalization scheme है। Under the interest equalization scheme on pre and post shipment rupee export credit, ये exporters के लिए, जितने भी हमारे exporters है, as in my introductory remarks I have already shared with you कि exporters, जो MSME exporters है, they contribute about 45% of the total exports of India's export of the country. 45% का शेयर है टोटल एक्सपोर्ट जो होता है इंडिया में, उसमें MSME is contributing 45%, ऑलमोस्ट हाफ। तो जब इतना बड़ा अगर MSME सेक्टर अपना योगदान दे रहा है एक्सपोर्ट्स में, contributing for the nation's exports and increasing our foreign exchange reserves, तो 5% पर एनम ये इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम है, इसमें स्पेशली फॉर एमएसएमई एक्सपोर्ट्स है, इसमें 5% पर एनम इस हिसाब से, और एक्सटेंडेड हो गई 31 मार्च 21 तक। अब देखिए आज 5% का अगर डिस्काउंट मिलता है तो आपको कितने सुविधाजनक, आपको मीन्स ल्यूक्रेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो फॉर एक्सपोर्टर्स, ये आप जाएंगे अगर पोर्टल पे, आप पूरा थोड़ा डिटेल में इसे पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। इट इज वेरी नाइस स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर, वेरी हैंडी एंड वेरी यूजफुल, यू कैन से कि एक आज एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम बनाई। फिफ्थ इज द क्रेडिट फैसिलिटेशन थ्रू बैंक। NSIC का आपने नाम सुना होगा, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। व्हाट इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन? It is basically coming under the Ministry of MSME to aid and promote and help the small industries. ये कॉर्पोरेशन बना है हर जगह, हर बड़े, नागपुर में भी इसका सेंटर है, और जहाँ भी एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है NSIC का ऑफिस होता है। And they have entered into MOU with various nationalized and private sector banks. And through association with this bank, they arrange the credit support from banks for MSME. मीन्स अगर आपको बैंक में डायरेक्ट नहीं जाना है तो आप NSIC के पास चले जाइए, NSIC से आपका प्रपोजल डिस्कस कीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स बताइए कि मुझे इतनी फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। दे विल अरेंज whatever you want. If you want term loans for acquisition of fixed asset, if you want working capital requirement to meet your working capital needs, or in the form of open cash credit or overdraft or bill discounting facility, whatever you need. If you need non-fund based limit such as guarantees, letter of credit, foreign bank guarantees, foreign LC, जो भी चाहिए, they have a tie-up with multiple banks, nationalized or private sector. जहाँ भी आपका proposal fit बैठेगा उस बैंक में वो बात करेंगे, and through NSIC you can have this financing facility because you are MSME. This is another advantage. Then there is a technological upgradation support, which is credit link capital subsidy CLCSS for technology upgradation. ये काफी lucrative है, काफी पॉपुलर स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि जितना आप लोन ले रहे हैं फॉर upgrading your technology,
एंटरप्रेन्योर है या यूनिट्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, सर्विस यूनिट्स है, अगर आपकी टेक्नोलॉजी कुछ बढ़ाने के लिए आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं, मशीनरी लेते हैं, प्लांट मशीनरी में एडिशन करते हैं या इक्विपमेंट्स लेते हैं, तो 1 करोड़ रुपए तक यानी 15 लाख मैक्सिमम है। 15% कहा गया है। अपफ्रंट आपको मींस अपफ्रंट मींस यू हैव टू अप्लाई व्हेनेवर इट इज, उसका विंडो ओपन होता है हर 6 महीने according to your sanction letter and when you acquired your fixed asset you have to apply। और 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डायरेक्ट आते हैं, आपको पता नहीं चलता। आपका टर्म लोन का जो अकाउंट रहता है उसमें वो डाल देते हैं और 3 साल के लिए एफडी हो जाती है। 3 साल के जब आपका आखिरी जो बचता है टर्म लोन का किस्त, तब वो एडजस्ट हो जाता है। तो कितना बड़ा बेनिफिट है एमएसएमई के लिए, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन सपोर्ट मींस मैक्सिमम 15 लाख मिलेगा। अगर 1 करोड़ 10 लाख का कोई आपने लिया हुआ है, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन किया हुआ है 1 करोड़ 10 लाख का, तो भी 15 लाख मिलेगा। 90 लाख का किया है तो 15% यानी उसका 13,50,000 रुपए मिलेगा। तो मैक्सिमम लिमिट इज 15 लाख। Reimbursement of certification fees for acquiring ISO standards. Nowadays many tenders में conditions रहती है कि आपका यूनिट ISO सर्टिफाइड होना चाहिए, ISO 9000 और ISO 14001 और whatever। तो उसका जो फीस होता है, एक्सपेंडिचर होता है फॉर गेटिंग दैट सर्टिफिकेशन, मैक्सिमम 75,000 you will get reimbursement from MSME ministry। 75,000 सर्टिफिकेशन एक्सपेंसेस। क्रेडिट रेटिंग करना होता है, इफ यू गो फॉर लोनिंग, एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है जो हमारे प्रपोजल को रेट करती है, पॉइंट्स मिलते हैं उसपे और फिर उस हिसाब से आपका प्रपोजल का क्रेडिट रेटिंग होता है, उस बेसिस पे आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। उसमें भी 40,000 रुपीज मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द स्लैब गिवन, यू कैन सी हियर, वो आपको वापस मिलता है बिकॉज यू आर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। एनर्जी कंजर्वेशन सपोर्ट, अगर आपका यूनिट एमएसएमई है और आपने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी स्टेट बोर्ड को लिख दिया है या जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपकी जो भी है उसको आपने लिखा है, वो सर्टिफिकेट अटैच कर दिया है, उद्योग आधार मेमोरेंडम, अब जो उद्यम रजिस्ट्रेशन आएगा आपको कंसेशन इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स दिया जाएगा। कंसेशन भी अच्छा है, 1.5 से 2 रुपए का फर्क है। जो दूसरा रेट है नॉन कंसेशनल रेट है और जो एमएसएमई कंसेशन रेट है 2 रुपए के करीब पर यूनिट का फर्क आता है। कितना बड़ा फर्क है देखिए। ये फायदे है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, कराना जरूरी है। क्यों कराना चाहिए, अब कराने के बाद उसके क्या फायदे ले सकते हैं ये जानिए। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इसे रखा गया है एमएसएमई। 7.5% ऑफ द बैंक्स, बैंकर का जितना फंड है, जितना फंडिंग करना चाहते हैं, जितना एक्सपोजर है, इट शुड बी गिवन टू द एमएसएमई एंड एट अ लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर एमएसएमई से बाहर भी हो जाता है, वो पहले एमएसएमई में था तो प्रायोरिटी सेक्टर में उसे लेंड किया गया था, उससे बाहर भी हो जाता, टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर हो गया, इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ के ऊपर हो गया अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन, then what will happen, still they will enjoy the benefits of MSME for the next 3 years। ये दिया गया है एक्ट के अंदर में। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है बैंक्स की, इसमें भी दिया गया है पॉलिसी में और एमएसएमई एक्ट में भी दिया गया है। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेटिंग एज एमएसएमई। मार्केटिंग सपोर्ट जो है वो भी देते हैं। Under this scheme, Ministry of MSME will reimburse 75% of the one-time registration fees। जैसे बार कोडिंग करना पड़ता है, बार कोडिंग का जो चार्जेस लगते हैं या जो खर्चा आता है उसका 75% वो वापस देते हैं, और एनुअल रिन्यूअल फीस जो है उसका 75% 3 साल, फर्स्ट 3 years फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर यूनिट। ये भी एक फायदा है। रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम बाय एनएसआईसी, फिर से एनएसआईसी का रोल आ गया। अंडर दिस स्कीम मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई, इसमें मैन्युफैक्चरिंग वालों को लिया है कि हैविंग उद्योग आधार मेमोरेंडम गेट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, बोथ इंडिजिनस या इंपोर्टेड। आपको इंपोर्टेड चाहिए रॉ मटेरियल या इंडिजिनस चाहिए, 90 डेज तक
ये आपका सीसी लिमिट जो है या ओडी फैसिलिटी जो है उसके अलावा ही आपको मिल रहा है एनएसआईसी से। अचानक आपका सब चल रहा है, अचानक आपको कुछ बड़ा ऑर्डर आ गया, 50 लाख का करोड़ रुपए का ऑर्डर आ गया और विद इन 3 मंथ्स या 4 मंथ्स आपको वो फुलफिल करना है, देन आपका एग्जिस्टिंग तो बिजनेस वैसे चल रहा है, तो आपका वर्किंग कैपिटल जो है बैंक के पास जाएंगे, कितने जल्दी बैंक से होगा एडिशनल आपको वो नहीं पता। ये एनएसआईसी यहाँ पे बैठे हुए हैं, नेशनल फॉरेन इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, दे आर देयर टू सपोर्ट यू। वो दे गिव यू रॉ मटेरियल असिस्टेंस अप टू 90 डेज, 90 दिन के बाद आपको वापस करना पड़ेगा, so that you can get the raw material on credit and enable MSMEs to execute orders in hands। यानी रॉ मटेरियल असिस्टेंस जो है एनएसआईसी गारंटी देगा रॉ मटेरियल सप्लायर को। गारंटी प्रोवाइड करने से क्या होगा कि दे विल सप्लाई द गुड्स which you want for that particular tender or order, and you will be able to execute the orders on hands within the stipulated time। Then 13th benefit is the single point registration scheme। आपको जानकारी होगी कि ऐसा दिया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होता है उसमें 25% एमएसएमई से ही लेना पड़ेगा उनको, ये अब पॉलिसी के अंदर में लिख दिया गया है। और बाय वर्च्यू ऑफ दिस क्लॉज एमएसएमई आर इमेंसली बेनिफिटेड कि 100 रुपए अगर परचेस करना है, 100 रुपए का परचेस अगर गवर्नमेंट को करना है तो 25 उनको कंपलसरीली एमएसएमई यूनिट से ही खरीदना पड़ेगा। कितना बड़ा बेनिफिट है देखिए। टेंडर्स, अगर टेंडर्स है तो टेंडर्स का जो फॉर्म रहता है या उसका ऑनलाइन फाइल करना, फ्री ऑफ कॉस्ट एमएसएमई को कई जगह पे मिलता है। अर्नेस्ट मनी में एग्जेम्पशन होता है या कंसेशन होता है कई टेंडर्स में। पार्टिसिपेशन फीस, जो टेंडर पार्टिसिपेशन फीस है उसमें भी काफी कंसेशन होता है। जेम पोर्टल पे अगर आप, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग का बहुत अच्छा पोर्टल बना हुआ है, आजकल ये कंपलसरी हो गया कि गवर्नमेंट को जो भी प्रोक्योर करना है अबव सर्टेन लिमिट, अबव सर्टेन अमाउंट, वो they have to put their requirement on this GEM portal, and if you are registered as MSME on this GEM portal and if you are able to connect with that supply, तो अगर आप वो चीज बनाते हैं जो चाहिए और आपका मैच हो गया, रेट और ये फिक्स हो गया, तो ऑटोमेटिक जेम पोर्टल से आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा, वही के वही आपका सेल हो जाएगा मींस उस गवर्नमेंट एजेंसी। ये सब एडवांटेज एमएसएमई सर्टिफिकेट है आपको। एमएसएमई आपका जो ओरिजिन है वो एमएसएमई है, आपका जो स्टेटस है वो एमएसएमई है, उस लिए आपको मिल रहा है। 14 पॉइंट देखिए, ऑल न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द पब्लिक आईटी पार्क आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस। आईटी पार्क्स और न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स, कोई भी इंडस्ट्रियल लैंड लेने अगर जाते हैं और आप एमएसएमई के अंदर में रजिस्टर्ड है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी पूर्णतः माफ है, रजिस्ट्रेशन फीस 0। 1 करोड़ की अगर आप एमआईडीसी में लैंड लेते हैं या और कई इंडस्ट्रियल लैंड लेते हैं तो 7 से 7.5% का स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा और बाकी सब खर्चा मिला के 8% होता है। 8 लाख रुपए सिर्फ आप एमएसएमई है, आप सर्टिफिकेट मिलता है बिकॉज यू आर सेटिंग अप द इंडस्ट्रियल यूनिट and you are contributing to the nation's economy, to the state industrial policy, state industrialization, you will get this benefit। पूरा माफ, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपकी लीज डीड या सेल डीड बन जाएगी। These are all inherent benefits, ये हमें ढूंढना पड़ता है क्या मिलता है। इंसेंटिव्स है, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट गवर्नमेंट ऑफर सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ वेरियस इंसेंटिव टू एमएसएमई फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द स्टेट। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, सब इंटर कंपटीशन है, इंटर स्टेट कंपटीशन है कि मेरे यहाँ ये यूनिट आना चाहिए, मेरे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए मैं हमारे यूनिट्स को ये ऑफर कर रहा हूँ, ये ऑफर कर रहा हूँ। इस प्रकार से कंपटीशन है अमंग द स्टेट। एंड आई एम प्राउड टू शेयर विथ यू दैट महाराष्ट्र की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 2019 एंड पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव जो है 2019 की, इट इज वन ऑफ द बेस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स।
10 करोड़ का अगर आप प्रोजेक्ट लगाते हैं, 8 करोड़ रुपए आपको वापस मिलता है महाराष्ट्र की तरफ से, महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से, बिकॉज यू हैव सेटअप इट इन विदर्भ रीजन। मैं विदर्भ की बात कर रहा हूँ, रीजन वाइज है। थोड़ा इंडस्ट्रियली डेवलप रीजन होगा तो कम होगा, 60% होगा, कहीं 70% है, विदर्भ में 80% है। अगर गढ़चिरौली में लगाएंगे या किन्वत में लगाएंगे, जहाँ पे थोड़ा सा नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज है, वहां पे 100% है। नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट है नंदुरबार, वह 100% है। यहाँ पे विदर्भ की जहां तक बात करें 80% है आपका। आप 100 रुपए लगाइए, 80 रुपए वापस मिलते 10 साल में, आपका यूनिट फ्री हो जाता 10 साल के। ये सब प्लानिंग का पार्ट है। प्लानिंग करते हुए एमएसएमई को ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें आगे बढ़ाना। इट इज नॉट कि हम लोग सक्षम नहीं है या आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज ओनली मैटर ऑफ परसेप्शन, इट इज मैटर ऑफ कमिटमेंट। चाह रखने वाले कभी मंजिल को देखते नहीं, बढ़कर थाम लिया करते हैं, और जिनके हाथों में होती है वक्त की कलम, वो अपनी तकदीर खुद लिख दिया करते हैं। So friends, this was all about my presentation and thank you very much for your patient hearing. जीवन के रास्ते हमेशा गुलजार रहे, चेहरे पे आपके सदैव मुस्कान रहे, देते हैं यही दुआ दिल से हमेशा आपको, आपकी जिंदगी में सदा खुशियों की बहार रहे। सी जुल्फे शाह, जय एमएसएमई, जय जय हिंद।